Allow me to introduce you to two exceptional pediatricians who have dedicated their lives to the care and well-being of children. Dr. Avinash Patel, MBBS, MD, Pediatrics, a distinguished gold medalist, possesses a passion for pediatrics that shines through his exceptional career. His commitment to the field is truly commendable, and he aspires to further his career in pediatrics. Dr. Reshma Patel is an MBBS DCH Pediatrics. Her dedication has led to numerous published success stories in prominent Indian newspapers and TV channels. In this interview, let's delve into their inspiring journeys, their passion for pediatrics, and their invaluable contributions to the healthcare sector, all through the lens of their own Sri Narnarayan Children Hospital in Gandhinagar, Gujarat, India. Welcome to ITV Gold Studio. Thank you. थैंक यू। फर्स्ट ऑफ बताइए आप अमेरिका में कैसे? एक्चुअली हम 1 मंथ के हॉलीडे स्पेंड करने के लिए अमेरिका में आए थे। वंडरफुल। देन वी थिंक अबाउट कि 1 मंथ हम हैं तो फिर थोड़ी छुट्टी ली थोड़ी जाए, छुट्टी ले लेते बाद हैं में तो और बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा घूमने के लिए यूएसए से बेटर और कुछ इंडिया है ही नहीं। जी। तो फिर हमने कहाँ सोचा घूमे आप लोग? हम लोग शिकागो घूमे हैं, न्यूयॉर्क घूमे हैं और अभी नेक्स्ट कैलिफोर्निया जा रहे हैं। Is this your first trip to US? Yes, it's our first trip to first international trip. अरे वाह, first international, Yeah. सीधा US. सीधा US. क्या बात है. So you will go high in life, high places, and all the best for your hospital on 22nd October. Thank you. Thank so you. much. So Dr. Avinash is a gold medalist in pediatrics. What drives your continuous pursuit of excellence in this field? Can you tell us about a particularly complex case that required innovative treatment, and how did you approach it? Okay. Actually, ma'am, when I was in standard 7th, I decided to be a doctor. And I was continuously watching and observing the good doctors in the society, how they are serving the poor people, and they were getting the more and more blessing from the patients. So I was inspired by all of them that I want to be a good doctor in the society. And पर गोल्ड मेडल आपको कैसे मिला और किस? Yes, actually, ma'am, my goal was not the gold medal. Of course. Yeah, but the work which I did passionately and with honesty, they gave me the gold medal in this field. बच्चों के प्रति एक लगाव सा हो गया था, जैसे कि कुछ भी हो जाए, हर एक बच्चा जो मेरे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, वो सही ढंग से ठीक होना ही चाहिए और उसको एक कंफर्ट एनवायरनमेंट मिले हॉस्पिटल में, वो अपनी लाइफ अच्छे से बिता पाए ज़िंदगी में, वही हमारा गोल रहता है। तो इस सारे जो एम्स थे ट्रीट करने के लिए पेशेंट को, वही सब हम काम में यूज़ करते हैं और उसकी बुनियाद पे ही आज गोल्ड मेडल मिला है। तो आप अब तक अंदाज़न आपने कितने बच्चों को ट्रीट किया है? Like you look very young, like I wouldn't say like a lot. Yeah, but honestly speaking, actual numbers पता नहीं, लेकिन around 10,000 or more. Oh my maybe. God! Yeah. Wow. Yes. That must be a record, like for a young guy like you doing all that seva and having so much of passion towards your profession. Wonderful. Thank you, ma'am. तो कोई ऐसा केस कभी आया है बच्चों, you know, like since you treat the kids, कोई बहुत ही complex situation या कोई केस जिसने आपकी रातों की नींदें उड़ा दी हों, लेकिन फिर भी you know you were able to successfully treat your patient? Yes, ma'am. बहुत सारे केस आए ऐसे। इस सबको तो मैं भगवान की दुआ ही मानता हूँ, क्योंकि एक्चुअली आई बिलीव इन भगवत गीता। इट इज सेड इन गीता दैट यू आर द मीडिएटर। जो सब करता है वो भगवान ही करता है, और भगवान मेरे थ्रू ये सब करवा रहा है, तो आई बिलीव दैट माई सेल्फ इज़ वेरी लकी। एंड ऐसे बहुत सारे केस है, लेकिन मुझे एक केस बहुत जो ज़्यादा याद है, जब मैं रेसिडेंटशिप कर रहा था तब एक कनिका करके पेशेंट थी। वो बहुत दिनों से बीमार थी, जो इंडिया के बहुत सारे बड़े अस्पताल हैं उन सब में उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया था। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब आप इनको घर पे ले जाइए, अब भगवान की ही मर्जी आगे चलेगी। प्रॉब्लम क्या थी कनिका में? एक्चुअली सी वॉज, जो उसको प्रॉब्लम था वो हलन चलन नहीं कर पा रही थी। सी वॉज नॉट एबल टू मूव हिज हैंड और लेग्स, एंड सी वॉज टोटली बेड रिडन पेशेंट। और उम्र क्या है कनिका की? अराउंड 5 to 6 years.
Oh my God. Yeah, and the horrible thing was that she was not diagnosed properly what the cause through she was bedridden. And after that, they tried to bring the patient to me when I was resident doctor. तो उस वक्त क्या होता है, एक चैलेंज की तरह लेते हैं हम पेशेंट को कि भी पेशेंट हमारे पास आया है, तो कुछ भी करके कैसे भी करके हमें उस पेशेंट को स्टेबल करना है और नॉर्मल तो करना ही है। तो लेकिन वो इतने सारे दिन हॉस्पिटल में रहे थे, पेशेंट का भी मतलब जीने का जो ख्याल होता है, जो इच्छा होती है, वो भी मर चुकी थी कि अब मुझे जीना ही नहीं है। 5-6 साल की लड़की की या, इच्छा नहीं थी नहीं थी जीने मतलब के लिए। उसे जिंदगी और मौत में पता था कि yes. क्या अंतर है। उतना Oh मतलब my उसको जकड़ लिया था, ये सारी जो डायग्नोसिस होते हैं वो भी पेनफुल होते Oh my God. हैं। एंड बच्चों को खेलने की उम्र होती है, उसमें अगर वो 2 या 3 महीने तक कंटिन्यूअसली हॉस्पिटल में रहे तो वो उनके लिए बहुत ही भयानक होता है सिचुएशन। जी। तो जब भी वो पेशेंट मेरे पास लेके आए तब मैं उनकी पेशेंट की आंखों में देख पा रहा था कि अब उसको कोई इच्छा ही नहीं है जिंदगी जीने की, वो थक चुकी थी जिंदगी से। लेकिन फिर और उनके पेरेंट्स ने भी बताया कि हम लोग एक चांस लेने के लिए आए हैं, घर पे जाके हमारी बच्चे एक्सपायर हो उससे तो अच्छा है कि हॉस्पिटल में ही एक्सपायर हो, बस वही उनका सेंटेंस था लास्ट। लेकिन फिर हमने सोचा कि बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट हम इन्वेस्टिगेट करते, पूरा हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें ये बात पता चली कि केस अभी डायग्नोस ही नहीं हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वही पता नहीं चल पाई है। तो फिर हमारी जो बुक्स होती है सारी वो सब हमने इकट्ठा की, उनका जो साइन सिम्टम्स था, उनकी जो हिस्ट्री थी, वो सब मिला के रिसर्च करके हम आए कि हाँ पेशेंट को ये डिजीज है। वो टिपिकल कॉम्प्लेक्स गुलियन बेयर सिंड्रोम था, वो जो डायग्नोस ही नहीं हो पाया था। और उसकी ट्रीटमेंट है। हाँ यस, और उसकी ट्रीटमेंट है। तो इसमें चैलेंज था डायग्नोस करना पेशेंट को। वंस पेशेंट डायग्नोस देन ट्रीटमेंट पार्ट ऑल्सो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ट्रीटमेंट भी इजी थी, क्योंकि वो एकदम कॉम्प्लिकेट हो गया था। पेशेंट को हम लोगों ने वेंटिलेटर पे रखा था 1.5 महीने तक। ओह माय गॉड। जब पेशेंट हमारे पास आया था तभी वो वेंटिलेटर पे था। उसके बाद मेरे पास आने के बाद भी वो पेशेंट 1.5 महीने तक वेंटिलेटर पर रहा। लेकिन फिर सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, और इसमें एक बात ये भी होती है जो मुझे अच्छी लगी कि ट्रीटमेंट तो हम करते हैं, लेकिन दिल से ट्रीटमेंट करते हैं तो भगवान उसका फल अच्छा ही देता है। आपने बार बार भगवान का जिक्र किया, हालांकि आप एक साइंस की फील्ड से आते हैं, आप डॉक्टर हैं, तो कभी इन दोनों चीज़ों में कोई द्वंद्व या कोई डिफरेंसेस नहीं आए? यू वर ऑलवेज एबल टू टेक गॉड विद यू ऑन योर पाथ ऑफ साइंस? ओके, एक्चुअली मैम नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कभी भी मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं जो साइंस है और जो गॉड है वो दोनों को एक दूसरे के लिए ही मानता हूँ। साइंस इज अ पार्ट ऑफ द गॉड। साइंस क्या है, वो सिर्फ ढूंढ रहा है कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया। वो भी एक्सेप्ट तो करता ही है भगवान को, करता है या इसलिए तो वो उसको खोज रहा है कि भगवान ने ये सारी चीज़ कैसे बनाई है, क्या कैसे है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। इंटरेस्टिंग। एंड दूसरी चीज़ क्या है, एक्सेप्टेंस, स्वीकार। अगर आप कोई भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आधा तो वहीं पे ही सॉल्व हो जाता है सिचुएशन। Very true. Dr. Reshma, your dedication to pediatrics is evident. What inspired you to choose this specialty and how has it evolved over the years? आपने pediatrics क्यों चुना या pediatrics ने आपको चुना? एक्चुअली मैम था ऐसा मेरा कि 10th क्लास तक मेरी पढ़ने की भी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन मेरी मदर मेरे लिए, मैं सच बोलूं कि अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो मैं आज कुछ भी नहीं होती। मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ होती जो इंडिया में रोटी बनाती है, खाना पकाती है। नहीं, आप मेरी जगह भी आ सकती थी। मुझे भी पढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी, बिल्कुल कभी इच्छा नहीं थी। लेकिन मेरी मम्मी ने, मुझे आज भी याद है, मुझे 10th स्टैंडर्ड में बोला था, बेटा अगर पढ़ाई नहीं किया तो आज जो मैं कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, वो ही तू करेगी। और वो आपको बिल्कुल भी नहीं वो पसंद मुझे था? बिल्कुल पसंद नहीं था। तो और वो भी देखती थी कि मम्मी हाउसवाइफ है तो उसको कितना सुनना, हम थोड़ा इंडियन कल्चर में और स्पेशली हम गुजरातियों में थोड़ा लेडीज को थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। नहीं, पंजाबियों में भी सुनना पड़ता वो है। जो भी सास ससुर बोलते हैं या कोई भी बोलता है वो सुनना पड़ता था। वो मैं देखती भी थी। फिर पता नहीं मम्मी की जो वो बात है, वो एक रात को मम्मी ने मुझे बैठा के बोला और उस दिन से मुझे लग गई। 11th क्लास में मैं मेहनत करना स्टार्ट की, लेकिन इतना वो नहीं हो रहा था मुझे। 11th में 70% आ गए, ठीक खत्म। फिर मम्मी बोली इतने से कुछ नहीं होगा बेटा,
ये तो बीच में लटक जाएगी, इतने से कुछ नहीं होने वाला, या तो कुछ मत कर या तो ऊपर तक जा। फिर जाके वो पता नहीं वो दिल पे लग गया, मम्मी ने जो बोला वो लग गया, तो मैंने चालू कर दी उस टाइम से। और 12th में अच्छी नंबर आ गई, फिर वो मुझे गवर्नमेंट एडमिशन भी मिल गया MBBS। फिर वो ख़त्म हो गई। फिर मुझे रोते हुए बच्चे पसंद नहीं थे, बिल्कुल पसंद नहीं थे। हम लोग को MBBS के बाद इंटर्नशिप आती है, तो हम तो 1.5 महीना हम पीडियाट्रिक्स में जाते थे। उस टाइम मैं जाती थी, बच्चे रोते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन एक बार मेरी NICU ड्यूटी थी, तो बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा था। मैं सिस्टर को बोली वो बच्चा बहुत रो रहा है, तो सिस्टर ने मुझे बोला कि एक काम करो, आप उसे गोदी में उठाओ, फिर वो चुप हो जाएगा। मैं थोड़ी ना उसकी मम्मी हूँ, तो वो बच्चा चुप होगा। फिर वो नहीं बोली, एक बार उठा के तो देखो फिर बोलो। फिर उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे न्यूबॉर्न जो 2 डेज़ का ही था, मुझे आज भी याद है वो 2 डेज़ का था, फिर मैंने उसको अपनी गोदी में उठाया और कंधे पे रखा। पता नहीं उस दिन से क्या अटैचमेंट हो गई मेरी, कि मुझे उस दिन से मतलब बच्चे भी अच्छे लगने लगे और मुझे खुद भी ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, ये मुझे यही करना है। और फिर मैंने चूज कर लिया कि मुझे पीडियाट्रिक्स ही करना है। That's a beautiful story. What role does your pediatric hospital, Shri Narnarayan Children Hospital, play in providing specialized care to the community, and what impact has it had on the region? Okay, actually, we have opened Sri Narnarayan Children Hospital, which is going to be inaugurated on 22nd October. हमने वहाँ पे 24/7 इमरजेंसी रखा है। मतलब आप कभी भी हॉस्पिटल में आ सकते हो और डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होगे ही। ज़्यादातर किस्सा में क्या होता है, जब भी पेशेंट को इमरजेंसी होती है तब डॉक्टर अवेलेबल होते नहीं हैं। तो हमने पहला मोटो हमारा यही रखा कि किसी भी सिचुएशन में एटलीस्ट 1 डॉक्टर तो अवेलेबल होना ही चाहिए। How big is your hospital? 30 बेड। 30 bed. And Yes. how many doctors are going to be there? We two, right आप now. दोनों ही होगे बस? Yes. तो आपकी मतलब 12 घंटे आपकी ड्यूटी, 12 घंटे आपकी ड्यूटी। या एंड हम लोग आगे जाके डॉक्टर को रिक्रूट करने का सोच रहे हैं। जैसे ही हम इनोग्रेट करते हैं उसके बाद वी आर प्लानिंग टू आस्क फॉर द रिज्यूम फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया फॉर द डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, एंड वी आर प्लानिंग टू रिक्रूट देम। तो फर्स्ट ये हो गया। दूसरा चीज़, हम लोगों ने ICUs खोले हैं। न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है। और हम लोगों ने ये भी सोच के रखा है कि हमारी हॉस्पिटल में पेशेंट एक बार आए तब उसको किसी भी फैसिलिटी के लेक अवेलेबल ना हो, मतलब उसको सारी की सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाए और उसको प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट मिल सके और उसका इलाज अच्छे से हो। वही हमारा प्राइमरी गोल है। But you will have nurses and all the staff. Yeah. Okay, and resident doctors या कोई Yeah. ये सब होंगे, but you two will be the main doctors. Yes. At a given point of time, like say गांधीनगर जहाँ पे आप हैं, तो कैसे कितने बच्चे होते हैं एक हॉस्पिटल में, या हमेशा कोई इमरजेंसी रहती है, या there are some quiet days when everything is okay? Actually, ma'am, in India, it is very difficult to find quiet days. Oh really? Yes. हर रोज अराउंड 100 की OPDs तो होती ही है वहाँ पे। यस, इन वेल नोन डॉक्टर्स, एंड एडमिशन भी उतने सारे रहते हैं, तो स्टाफ भी उतना ज़्यादा रखना पड़ता है। एंड हमारा जो हॉस्पिटल है उसका लोकेशन ही ऐसा है कि वो सभी जगह से लोग आप इजीली आ पाएंगे। तो उस हिसाब से हम जो अभी जो देख रहे हैं, तो हमारी भी OPD करीबन 100 के आसपास तो रहने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो आप दोनों वो कैसे हैंडल करेंगे? एक्चुअली मैम, इंडिया में सभी डॉक्टर को ऐसे ही ट्रेन किया जाता है कि वो पर डे 100-200 पेशेंट तो इजीली देख सकते हैं। वाओ, सो टेल मी द रूटीन, लाइक जब आप ये कोर्स कर रहे होते हैं या जब आप अपनी रेजिडेंसी करते हैं, तो हाउ मेनी डॉक्टर्स आर अबव यू, एंड यू नो आप कितने रेजिडेंट्स होते हैं एक जगह पर? एक्चुअली मैम, MCI के नॉर्म्स के हिसाब से जितनी सीट्स अवेलेबल होती है एक मेडिकल कॉलेज में, उतने रेसिडेंट की भर्ती की जाती है और उस हिसाब से आवर्स डिवाइड किए जाते हैं सभी रेसिडेंट के बीच में। तो वहाँ पे पेशेंट लोड ज़्यादा होता है इंडिया में, तो ऑब्वियसली जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी ज़्यादा ही रहते हैं। एक तरीके से बोले कि ओवरबर्डन है तो भी चल सकता है, लेकिन ओवरबर्डन ही हमें आगे जाके कामयाब करता है। जैसे कि वहाँ पे इतना सारा काम किया हुआ होता है कि जैसे ही पेशेंट अंदर एंट्री करता है तो हमें दूर से ही पता चल जाता है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। वाओ। बाकी तो सब सारी सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी होती है।
बाकी पहले से ही माइंड में क्लिक हो जाता है कि अराउंड 70-80% तो यही प्रॉब्लम है पेशेंट को। और ये ओवरबर्डन की वजह से ही, ओवरबर्डन तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़्यादा काम होता है कि हम काम करते करते उसमें इतने माहिर हो जाते हैं कि फिर वो हमारी स्किल बन जाती है और हमारे लिए खेल बन जाता है। जैसे कि बहुत सारे, भगवान की दया से बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमारे इंटरव्यूज़ आया है, टीवी चैनल्स पे भी इंटरव्यूज़ आए हैं। वो मैं मानता हूँ जो ये हार्ड वर्क करते हैं ना, उसकी वजह से ही है। तो आगे जाके ये आपका रूटीन बन जाता है। Very interesting. How do you collaborate with each other and your team to provide comprehensive pediatric care? एक्चुअली हम क्या करते क्या है, पहले तो हम, हमारी जो टीम है या फिर हमारे जो कलीग है, हम सबको रिस्पेक्ट से बात करते हैं। हम कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझते। हमारे साथ में जो कलीग है, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो राय है, उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। उनका जो ओपिनियन है वो भी हम मांगते हैं समय समय पर। हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्लान है वो भी हम डिस्कस करते हैं आपस में। इस पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान, इज़ इट वैलिड, इट इज़ राइट, और कुछ ऐड करना है कि नहीं करना है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। और हमारा जो स्टाफ है, एक्चुअली हम स्टाफ नहीं बोलते हैं उनको, हमारे ब्रदर और सिस्टर ही गिनते हैं उनको। एज अ फैमिली वी ट्राई टू वर्क एज अ फैमिली। अगर आपस में कुछ भी है तो साथ में मिलकर बैठकर हम उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को डांटना, ऊंची आवाज़ में बात करना हम हमारे हॉस्पिटल में अलाउ ही नहीं करते। तो क्या एक कंफर्टेबल एक फैमिली एनवायरनमेंट रहता है, तो सबको काम करने में मज़ा आता है। और जितने घंटे होते हैं उससे डबल वो लोग काम करके जाते हैं। आप उतने पैसे देते हैं उन्हें ओवर टाइम? हाँ, यस यस यस। एक्चुअली मैम, मैंने ऐसा सुना है, हमारे जो स्टाफ होते हैं, तो सभी स्टाफ की एक कंप्लेन रहती है कि जो मतलब उनके बॉस होते हैं वो थोड़े रूड होते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, हमें एज ए एम्प्लॉय ट्रीट करते हैं। तो उन लोगों को पैसे से ज़्यादा मान चाहिए, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट होती है उनकी। बस अगर आप उनकी रिस्पेक्ट को आप अगर अच्छे से रखते हो तो वो लोग और कुछ नहीं चाहते। पैसे तो सबके पास है और सब लोग मैनेज कर लेते हैं उसमें से ही, लेकिन एक जो रिस्पेक्ट मिलती है आपको वर्क प्लेस पे, वही उन लोगों को ड्रिवन करती है अच्छा काम करने के लिए। आपने कहा आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, एंड एट वन पॉइंट यू आल्सो मेंशन्ड कि आपने गरीब बच्चों को देखा और बहुत आपके दिल में वो you felt the pain. Yes. So do you have some kind of a provision for kids who come from poor families or cannot afford your fees? यस मैम, एग्जैक्टली। एक्चुअली मुझे एक ख्याल आया, मानव परिवार है इंडिया में, गुजरात में, जो लोग मातर में सेवा करते हैं। मैं वहाँ पिछले करीबन 7 साल से सर्विस दे रहा हूँ। It's an NGO. या Okay. NGO। सो एंड हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को वहाँ पे कैंप लगता है। तो वहाँ पे जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं और उनसे जो ब्लेसिंग मिलता है वो पैसे कमाने से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे और मेरे वाइफ ने तो यही डिसाइड किया है कि पैसा देना या नहीं देना वो ऊपर वाले की बात है। और हमारे हिंदू संस्कृति में, इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि संपत्ति और संतति मीन्स वेल्थ एंड योर चिल्ड्रंस, वो भाग्य से मिलते हैं। उसके लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन पाप करने की ज़रूरत नहीं है। Very true. या तो हमारे हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने वही सोचा है कि अगर कोई पुअर पेशेंट आता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। वो पैसे नहीं देगा लेकिन आशीर्वाद तो देगा ना हमको, वो ब्लेसिंग देके जाएगा। तो वो हमारे लिए पैसे से भी बढ़कर है। Very nice. Yes. So how about some government aid or something from your state? Do they give some kind of things like do they make things easier for you, for people with private hospitals, some kind of rebates or tax deduction, or do you have something like where people can donate to your hospital? Do you have like a charitable kind of a unit there? यस मैम, एक्चुअली उसमें कैसे गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोजेक्ट्स आते हैं, योजना आती है कि जो पुअर पेशेंट है उनको आप इसी योजना के तहत ट्रीट कर सकते हो पेशेंट को, और गवर्नमेंट आपको पे करेगी। तो उस योजना के तहत भी आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। Oh, that's nice. Yeah. That's wonderful. Yes. So do you have medical insurance? And सबके पास नहीं होती है, but you will still see the patients. या मैम, इंडिया में मैम वो बहुत कॉमन है। सबके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी जेब से पे करते हैं।
तो उस जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कभी कभी पेशेंट पे नहीं कर पाता है, तो हम लोगों ने, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी एक इच्छा थी कि कोई भी पूरा पेशेंट हो, कोई भी बच्चा अपने अस्पताल से वापस नहीं जाना चाहिए बिना ट्रीटमेंट के, अगर उसके पास पैसे हो या ना हो। तो हम लोग वही मोटो लेके अभी तो चल रहे हैं। बहुत अच्छे संस्कार आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने दिया आपको। थैंक यू मैम। Can you discuss the challenges of working with pediatric patients and their families in a tertiary level NICU setting? How do you manage the emotional challenges of dealing with young patients and their families during difficult times? यस रेशमा। एक्चुअली जब भी कोई भी बच्चा आता है ना, तब बच्चा तो कुछ बोलता ही नहीं है कि मुझे ये हुआ है वो हुआ है, वो सिर्फ रोता है। कुछ भी इशू है वो सिर्फ रोता है। लेकिन पेरेंट्स ही सब कुछ बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ये हो गया, ये खाना नहीं खा रहा है, इसको सर्दी जुकाम हो गया है, बुखार आ रहा है, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है। तो बच्चे सिर्फ रोते हैं, लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। उस टाइम बच्चे की ट्रीटमेंट जितनी ज़रूरी है उतना ज़रूरी पेरेंट्स के काउंसलिंग रहता है। कि उसको फर्स्ट तो हमको ये समझाना है कि आपके बच्चे को हुआ क्या है, फिर हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको, फिर उस ट्रीटमेंट से आपका बच्चा कितने दिन में सही होगा, वो चीज़ समझानी है। तो जब भी स्पेशली ये चीज़ कहाँ होती है कि जब भी कोई भी बच्चा आईसीयू में एडमिट रहता है, तब ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है पेरेंट्स के लिए। क्योंकि हम एनआईसीयू में बच्चे को एक बार एडमिट करते हैं, फिर पेरेंट्स को 24 आवर में एक ही बार विजिट करने देते हैं। तो उस टाइम पेरेंट बहुत ही ज़्यादा वरीड रहते हैं कि अगर अंदर हमारा बच्चा है, उसको क्या प्रॉब्लम होगा, उसको कोई देख रहा है कि नहीं, उसको क्या ट्रीटमेंट जा रही है, बहुत वरीड रहते हैं। उस टाइम हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि जब भी हम एनआईसीयू के सारे बच्चे को एक बार देख लेते हैं, फिर हम पेरेंट्स को बुला के उसका 24 आवर का जो भी रिपोर्ट है वो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अभी तक आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम था, हमने इतना ट्रीट किया और पिछले 24 आवर में उसको इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमारा नेक्स्ट प्लान भी यही है। और उसी तरह से फिर पेरेंट्स हमको ये क्वेश्चन भी करते हैं, क्या मेरा बच्चा 100% सही हो जाएगा? तब हम गॉड नहीं है, हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि 100% आपका बच्चा सही होगा, लेकिन हम उसको पॉसिबिलिटी दे सकते हैं कि आपके बच्चे की जो भी कंडीशन है उसमें इतने % चांसेस है कि वो इतने दिन में सही होगा। स्पेसिफिकली पेरेंट्स ये पूछते हैं कि मेरा बच्चा कितने दिन में सही होगा। तो हम टाइम और 100% गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम उसको इतना समझा के मना के बोल सकते हैं कि आपका बच्चा प्रोबेबली इतने दिन में सही होगा और इतने % चांसेस है कि आपका बच्चा सही होगा। और मैं बोलती हूँ ना कि अगर हम रिलेटिव को या पेरेंट्स को अच्छे से काउंसलिंग करेंगे ना, तो वो भी उसका जो भी स्टे है, उसका बच्चा जब तक हॉस्पिटल में रहता है तब तक वो भी आराम से रह पाएंगे। वरना क्या रहता है, जितने दिन भी बच्चा हॉस्पिटल में उतने दिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड रहते, स्पेशली मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरा बच्चा, वो भी जब बर्थ के तुरंत बाद एनआईसीयू में ले जाता है तो मम्मी ने उसका बच्चे का फेस भी नहीं देखा है और बच्चे को एडमिट कर दिया जाता है, तब ज़्यादा टेंस होती है। हमारे पास बहुत सारी एरी मदर आती है और उसके रिलेटिव भी आते हैं, आप ऐसा है तो उसकी मम्मी को एक बार समझा दो। घर में सब लोग समझ गए हैं कि ठीक है बच्चे की कंडीशन ये है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसकी मम्मी नहीं समझ रही है। तब उसकी मम्मी को हम बुला के प्यार से समझाना पड़ता है कि तो टेंशन मत ले, हम इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि अच्छा ही रिजल्ट होगा। So, Dr. Avinash Patel and Dr. Reshma Patel, your passion for pediatrics, your commitment to the well-being of children and even to the fellow passengers on the plane, and your tireless dedication to the field of healthcare have truly inspired us today. We look forward to following your continued contributions to the field of pediatrics, and we are grateful to have had the opportunity to learn from you today. Thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू।